اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین مجلس، ذی احترام علماء دین و مشائخ نظام اور سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے جملہ معزز قائدین اور ہر میڈیا، چاہے وہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، جتنے بھی صحافی برادران تشریف لائے ہیں، ان سب کا سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کیا جاتا ہے اور پیشگی ہی آمد میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارکباد بھی دی جاتی ہے آپ تمام کو، بلکہ آپ کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ساری آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، بلکہ ساری بنی نوع انسانیت کو۔ الحمدللہ ابھی مجھ سے پیش رو صوفی کے قائدین نے بڑے اچھے انداز میں آپ کی پریس کانفرنس کو خطاب کر رہے تھے کہ آج سے کئی سال پہلے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی بنیاد قائد اہل سنت حضرت العلامہ مولانا سید شاہ محمد اولیاء حسینی المعروف و مرتضیٰ پاشا قبلہ نے بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑی ہی کوششوں کے ساتھ اس بنیاد کو رکھا تھا۔ کیوں کہ عالم یہ ہو چکا تھا کہ ہر گوشے سے دین اسلام کو اور دین اسلام کے ماننے والوں کو کچھ نہ کچھ انداز سے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یعنی فرقہ پرستی کا لیبل مسلمانوں پہ تھوپا جا رہا تھا، جبکہ اسلام کی بنیادی فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے تھی۔ تو کیوں نہیں ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں کہ ساری آرگنائزیشن کو یکجا کر کے سنی جتنے بھی سنت الجماعت سے جو متعلقہ تنظیمیں تھیں سب کو یکجا کر اس کا نام صوفی رکھ دیا گیا، تاکہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا، جس کا شارٹ فارم صوفی ہے۔ تو الحمدللہ پرست طاقتوں کو جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کی جڑ بنیاد کو اکھاڑنے کے لیے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا تشکیل دی گئی، اور الحمدللہ لوگوں کے دلوں سے فرقہ پرستی کا جو وہ تھا، مطلب جو ہے خمار تھا، اس کو کسی حد تک ختم بھی کر دی گئی۔ تو الحمدللہ لوگوں کو امن کا پیغام دیتے ہوئے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے دیتے ہوئے، اور ہر ایک کے ساتھ بھائی چارہ، بلکہ خود اپنے لوگوں میں بھی دلوں کو صفائی کرتے ہوئے شانہ بہ شانہ چلنے کے لیے 2 قدم شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ کا نعرہ دے کر الحمدللہ جو ہے بڑی حد تک کامیابی سے جو ہے ہمکنار ہوئی ہے تنظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ تا قیامت اس تنظیم کو قائم رکھے، اس جوش و جذبے کو قائم رکھے۔ پھر ساتھ میں ایک اہم اقدام قائد اہل سنت کی ایک کوشش تھی کہ کیوں نہ بنی نوع انسان کی خدمت میں بھی کیوں نہ جڑے۔ تو اس کا ایک اہم پہلو، یہ ایک چیز کو یہ اٹھاتے مدعے کو کہ لوگ خون کی کمی کی وجہ سے کئی قسم کے جو ہے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ خود خون کو کمی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد بھی جیسا جلوس کی بنیاد 2008 میں پڑی، اس کے سال 2 سال میں ہی قائد اہل سنت نے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا جو ہے انعقاد عمل میں لایا قادری چمن شریف میں، جو بلڈ ڈونیشن کیمپ اور جلوس بھی حضرت مولانا سید شاہ محمد حسن ابراہیم حسینی صاحب قبلہ المعروف سجادہ پاشا قبلہ، جو قادری چمن شریف کے سجادہ نشین ہیں، جانشین ہیں وہاں کے، ان کی سرپرستی میں، ان کی زیر عاطفت جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کی بنیاد بھی ڈالی گئی، اور جلوس بھی وہاں سے جو ہے انہی کی سرپرستی میں نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مکہ مسجد کے پاس دوسرے علماء مشائخین سیرین موش تشریف لاتے ہیں، ہمارے قبول پاشا شتاری صاحب جو صدر مجلس علماء دکن ہیں وہ بھی جھنڈی بتاتے ہیں، اور سارے مشائخ نظام اور سارے علماء دین مفتیان اکرام سب جمع ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ۔ تو بلڈ ڈونیشن کی جو بنیاد پڑی وہ سارے بنی نوع انسانوں کی خدمت کے لیے پڑی، کہ کیسے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے کرم سے اگر اس کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا بلا لحاظ مذہب و ملت، یعنی ہے تو سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا، پر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین ہیں تو ساری بنی نوع انسان کے لیے رحمت ہیں، تو سارے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں۔ تو یہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا بلا لحاظ و مذہب و ملت، چاہے وہ علی قادری صاحب ہو یا اللہ صاحب ہو یا ملا صاحب ہو، جس کسی کو بھی اگر خون کی ضرورت پڑتی ہے تو صوفی کے پرچم تلے سے جو ہے وہ خون کے پاکٹ ان تک جو ہے پہنچا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی حد تک
उनके लिए जो है मर्ज में इफाक़े का जो है बाइस और सबब बनता है। तो अब इनफरादियत इस ब्लड बैंक की ये हो गई, ब्लड डोनेशन कैंप की, कि शुरू तो सब गाजी अहले सुन्नत, सईद दक्कन, हमारे वसीम साहब, बानज्जा साहब, ये सब देते थे, अकबर शरीफ साहब, खलील साहब। मगर अब जो सूफ़ी की मोहब्बतों को देखते हुए, खानखाए निज़ाम के मोहब्बतों और पैगाम को देखते हुए, दूसरे बरादरान वतन यानी हमारे वतन में दूसरे मज़हब के मानने वाले भी जौक़ दर जौक़ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न के मौके पर जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है, उसमें वो लोग भी आकर जो है खून का अतिया दे रहे हैं। ये बड़ी खुश आइन बात है। हकीकत में जो है ये अमन का पैगाम है कि लोग जो है सूफ़ी की मोहब्बतों से मुतासिर होकर बजाय जो फ़िरक़ा परस्ती का जहन रखते थे, वो अपने जहन को साफ़ कर जो है यानी वाक़ई इंसानियत के दर्स को हासिल करने के लिए वो लोग भी जुड़ते हैं और उनके तरफ से भी खून का अतिया आता है। जो एसटी बरादरी क़ादरी चमन शरीफ के बाजू आजू में है कि उसके क़ायदीन जम्मे गफ़ीर लोगों को लेकर कर जो है खून का जो है अतिया देने के लिए पेश रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इधर जितने भी उशाख़ान रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खून देते हैं, वो खून भी जिस किसी को ज़रूरत है पहुँचता है, चाहे वो एसटी बरादरी को हो या ओसी बरादरी को हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस किसी को भी पहुँचता है। तो ये है, तो इसकी बुनियादी अमल है कि फ़िरक़ा परस्ती के ख़ात्मे का, आपस में अमन व अमान और इत्तेहाद को पैदा करने की ये कोशिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश में कामयाबी भी हासिल हुई है और आइंदा और कामयाब होकर रहेंगे। बल्कि सरज़मीन हैदराबाद से नहीं, तेलंगाना से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सतह पर जो फ़िरक़ा परस्ती की जो जड़ें आज भी कुछ मौजूद हैं, उसको उखाड़ फेंकने का काम ये सूफ़ी यानी सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया ने बराबर इसकी कोशिश करेंगी और उसको निकाल कर जो है इंशाअल्लाह ताला फेंक देंगी। बहरकब हमारे मुल्क को अमन व आमान का एक पैगाम देंगी, बल्कि अमन व आमान की खुशगवार फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया बेहतरीन जो है कामयाबी भी हासिल करेंगी इंशाअल्लाह। तो रहा सवाल दूसरी चीज़, 10 अक्टूबर अब के साल इसी माह मुबारक, इसी महीने में 10 अक्टूबर को क़ादरी चमन शरीफ में हज़रत उल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद औलिया हुसैनी साहब क़िबला मारूफ मुर्तज़ा पाशा साहब क़िबला की ज़ेर सदारत और हज़रत सैयद शाह मोहम्मद हसन इब्राहिम हुसैनी अलमारूफ बसज्जाद पाशा साहब क़िबला की सरपरस्ती में जो ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया है सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से, तो तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन से बिलखुसूस और बल्कि सारे नौजवानों से हैदराबाद के मेरी गुजारिश है कि वो जौक़ दर जौक़ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत रखते हैं, तो जौक़ दर जौक़ इस कैंप में जो है शरीक होना है और फिर खून का अतिया भी देना है। ना सिर्फ लोगों की सेहत के वास्ते, बल्कि खून का अतिया देकर ख़ुद की अपनी सेहत की भी जो है ज़मानत लेना है। क्योंकि फिर ये खून जो दिया जा रहा है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से दिया जा रहा है, तो आम खून देने का रुतबा अलग रहेगा, या आक़ा की निस्बत से खून देने का रुतबा, इसका मामला ही अलग होगा। तो अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि 10 अक्टूबर 2021 सुबह 7 बजे से शाम में 7 बजे तक क़ादरी चमन शरीफ में जो है ब्लड डोनेशन का कैंप मुनक़िद हो रहा है। और सारों से गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल जौक़ दर जौक़ पहल करें कि मेरा खून पहले दूँ, मेरा खून पहले दूँ। तो अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस नौजवानों से, कि इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी काफ़ी तादाद में वहाँ नज़र आएंगे और हम सब आपका इस्तक़बाल करेंगे। बस ये चंद कलिमात कहते हुए ये माइक क़ायद अहले सुन्नत को दूँगा। फिर और भी क़ायदीन हैं सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के, आपसे ज़रूर आपके सामने अपने इज़हार ख़यालात करेंगे। क़ायद से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़रीन ख़यालात का इज़हार करें जी। इसके साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम किया जाता है और मैं फिर से मशकूर हूँ तमाम मीडिया ब्रदरी से कि जो मुख्तसर सी नोटिस पर आप तमाम तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, आपके चैनल्स को भी अल्लाह फलता फूलता जो है तरक्की अता फरमाए। तलहा कसरी साहब ने जिस बात की तलखीन की है कि फलकनुमा ब्रिज जो अभी ज़ेर तामीर है, मगर उस पर से गुज़रने का मतलब रास्ता तो फराम हो सकता है कि क़ायद अहले सुन्नत के ज़ेर सदारत इस शहर हैदराबाद के कोतवाल साहब से बराबर नुमाइंदगी कर इंशाल्लाह उसको उस एक दिन के लिए जो है खुलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ने पर हमारे शहर के जो क़ायदीन हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस व मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट और हमारी जमात के जो MLAs वगैरह हैं उनकी भी नुमाइंदगी हासिल कर उसको आसान जो है बनाने की कोशिश करेंगे। जुलूस को गुजरने के लिए खुलाने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह खुलेंगे उसको इंशाल्लाह ताला। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान अज़ीज़, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की ये प्रेस मीट आप हज़रात क़ायदीन को समाअत फरमा रहे हैं। मैं भी चंद बातें आप हज़रात के सामने रखूँगा कि इस साल
के कन्वीनर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान साहब बंदा नवाजी, जो हर साल इस जिम्मेदारी को बहुत खूबी से निभाते हैं, इस साल भी इंशाअल्लाह ताला आप निभाएंगे। और दूसरी बात कि इंशाअल्लाह ताला कादरी चमन दरगाह शरीफ से मिलाद जुलूस का आगाज़ 11 बजे दिन होगा और मक्का मस्जिद से 2 बजे ये जुलूस आगे बढ़ेगा। इसकी रूट अभी माशाअल्लाह सईद कादरी साहब ने जो बताई है, हाफिज भाई ने जो फरमाया है कि साबिक़ा जो रूट थी वही रूट रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 10 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आ रहा है, उसमें तमाम हजरात ज़रूर ब-ज़रूर शिरकत फरमाएँ। तीसरी बात आपसे जो अर्ज़ करनी है वो ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से 2021 में हम दाखिल हो गए और मिलाद जुलूस का ये सिलसिला चल रहा, हज़ारों आ रहे हैं, अफराद आते हैं, बल्कि लाखों आदमी इसमें शिरकत फरमा रहे हैं और भी शिरकत करनी चाहिए। तो बाज़ अहबाब को इसमें कुछ कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भाई ये सड़कों पे हमारा निकलना, ये नारे लगाना, ये जुलूस में जाना, ये कैसा होगा, क्या ये सही है या नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई हमारे लिए हमारी जो मुहज़्ज़िबाना मिजाज है उस मिजाज में कहीं फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा। तो उन तमाम भाइयों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये वो सुन्नत तय्यबा है जो मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तमाम असहाब, उस वक्त के जितने मर्द मुसलमान थे, रूए ज़मीन के तमाम मुसलमान मौजूद थे, जो आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जुलूस निकाले हैं। अरक़म बिन अरक़म के मकान से मैं 12 सालों साल से ये रिवायात अवामुन्नास के सामने ला रहा हूँ। फिर एक मरतबा तमाम के हवाले से, इन कैमरों के हवाले से मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भाइयों कि ये जुलूस निकालना, सड़कों पर उतर आना, नारे बुलंद करना, तकबीर अल्लाहु अकबर कहना, ये खुद मेरे आका सैयद आलम और आपके असहाब और तमाम मुसलमान कोई अमल ऐसा नहीं है आज के दौर में कि तमाम के तमाम मुसलमान वो अमल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस वक्त के तमाम रूए ज़मीन के मुसलमान मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ निकले हैं और जुलूस निकाले हैं अरक़म बिन अरक़म के मकान से और हरम काबा तक तशरीफ़ लाए हैं। तो इसमें उनसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मुहज़्ज़िब कोई कौम नहीं, कोई अफराद नहीं। आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तमाम मुसलमानों का इस पर इजमा है और मेरे आका सैयद आलम का खुद अमल साबित करता है कि आका सैयद आलम अरक़म बिन अरक़म के मकान से निकले हैं, बड़े रास्तों से भी गुजरे हैं, छोटे रास्तों से भी गुजरे हैं। तो जुलूस निकालना ये वो सुन्नत तय्यबा है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया इस पर अमल करती है। आप तमाम से भी मैं अपील करता हूँ कि ज़रूर ब-ज़रूर 12 रबीउल नूर को 11 बजे कादरी चमन दरगाह शरीफ से 2 बजे मक्का मस्जिद से इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस अपनी रूट पर आगे बढ़ेगा। तमाम उम्मत मुस्लिमा से मेरी दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि वो ज़रूर तशरीफ़ लाएं। एक और बात आपसे कहनी है, आपके हवाले से वो मेरे भाइयों तक पहुँचाना है कि जो शुरू 2008 में जो भाई, जो तंजीमें, जो अफराद साथ थे, मैं पुरजोर दिल की गहराइयों से उनसे आजिज़ाना अपील करते पे ढालेंगे हम, आओ सबको गले से लगाएंगे हम। यही सूफी का पैगाम है। आप तमाम हजरात ज़रूर ब-ज़रूर तशरीफ़ लाएं। हर तंजीम जो 2008 से शरीक थी, आप बुनियाद है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। और वो अफराद जो तशरीफ़ लाते थे, कोई अपने बड़ों की उंगली पकड़ के आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जवान हो गए हैं भरपूर, वो ज़रूर अपनों के साथ आएँ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ आएँ। और 10 अक्टूबर को क्या कहते हुए आएंगे हम ब्लड डोनेशन कैंप में? या रसूल अल्लाह हम खून का नजराना देंगे, या रसूल अल्लाह हम खून का नजराना देंगे। तो ये कहते हुए, क्योंकि मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आता है। आप हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाएं और खून का नजराना पेश करें। इसकी एक खुसूसियत क्या है मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप की कि साल भर जब कभी किसी को ज़रूरत होती है तो अभी जैसा भाई ने फरमाया कि बिला मजहब, बिला नस्ल, बिला रंग, बिला ज़बान कोई तफरीक़ नहीं है, बल्कि जो ज़रूरतमंद होता है। और बाज़ लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए, मुस्तहिक़ीन के लिए, ऐसा भी नहीं है। जिस किसी को, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, जिस किसी को खून की ज़रूरत है वो एक कॉल करते हैं और जब भी उनको कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है और उनको खून मुहैया कर दिया जाता है। तो तमाम अफराद से मेरी ख्वाहिश है
کہ 10 اکتوبر کو بھی تشریف لائیں اور انشاءاللہ تعالی 12 ربیع النور کو میلاد جلوس میں ضرور تشریف لائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.